Very beautiful good morning to class 9 biology students. Now I am going to discuss the next viral disease, that is AIDS. AIDS. Firstly, this is not a disease. It is, when you will study this disease in the higher classes, it is not considered as a disease. It is considered a syndrome. Now I will discuss what is syndrome. Okay. First we will discuss the full form of this disease. This is acquired immunodeficiency syndrome. Acquired means gained. It is not genetic. Immunodeficiency, it means which decreases our immune power and create a group of symptoms. This is known as syndrome. It means the group of symptoms which is gained by the deficiency, by the decreasement in the activity of immune system. This is known as AIDS, which is caused by a retrovirus, that is HIV. It means human immunodeficiency virus. It means the virus which causes decreasement in the activity of our immune system. It means in the immune system of human being, that is known as HIV. Why I have written this word retrovirus? Because this is the virus which can change its genetic material from RNA to DNA. I will show you a simple structure of AIDS virus. It has a single stranded RNA as its genetic material. Along with this RNA, it has a specific enzyme that is known as reverse transcriptase, and it is covered by a protein coat that is called capsid. When it infects our body, it can do the infection on our body when it has the genetic material DNA, but it has the genetic material RNA. So if it want to infect our body, firstly it has to convert its RNA into DNA. So the process by which a genetic material can be changed from the RNA to DNA, that type of viruses are called retroviruses, and this process is known as reverse transcription, which take place by the enzyme which occur by the enzyme reverse transcriptase. Now we will discuss that how this disease is transmitted. किससे ट्रांसमिट होती है? बहुत सारे लोगों में गलतफहमी है that it is a communicable by mere touch or contact it can be spreaded to our body. हमारी बॉडी में फैल सकता है, but it is only transferred from a infected person to a healthy person with the help of the body fluid. It is important. बॉडी फ्लूइड के थ्रू ही जाएगा. वो बॉडी फ्लूइड हमारा मेल्स में सीमेन भी हो सकता है, ब्लड भी हो सकता है, लिम्फ भी हो सकता है. इनके थ्रू ये ट्रांसफर होता है. तो मोड ऑफ इन्फेक्शन जो है वो बॉडी का फ्लूइड है. जब तक इन्फेक्टेड पर्सन का बॉडी फ्लूइड किसी हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर नहीं होगा, तब तक ये वायरस जो है वो उसकी बॉडी में नहीं जाएगा. अब कैसे कैसे ट्रांसफर हो सकता है? फर्स्ट थिंग, फ्रॉम द प्रेग्नेंट मदर टू हर बेबी. मदर से उसके बेबी में ट्रांसफर हो सकता है. जो इंट्रावीनस ड्रग अब्यूजर्स होते हैं, जो इंजेक्शन से ड्रग्स लेते हैं, उनमें ट्रांसफर हो सकता है. बार्बर शॉप में अगर आप सेम रेजर यूज कर रहे हो, देन इट कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड. इफ यू आर टेकिंग एनी इंजेक्शन बट यू आर नॉट स्टेरिलाइज दैट इंजेक्शन, you are taking the same injection, or if this injection is used for the unhealthy person, then it can also be transmitted. It is basically, it is a sexually transmitted disease. If a person in the habit of sexual contact with unknown partners or with multiple partners, then it can also be transmitted to the infected person to a हेल्दी पर्सन. सो दीज आर द मोड ऑफ इन्फेक्शन. इस तरीके से बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है. अब जो इसके मोड ऑफ इन्फेक्शन है वही इसके प्रिवेंशन के तरीके हैं. लेकिन प्रिवेंशन पढ़ने से पहले हम एक चीज पढ़ेंगे, ये करता क्या है, व्हाट आर द ग्रुप ऑफ सिम्टम्स जो हमारे अंदर क्रिएट कर रहा है. व्हेन दिस वायरस एंटर इनटू आवर सेल, जब ये वायरस हमारी बॉडी में एंटर करता है, इट कन्वर्ट्स इट्स आरएनए, अपने आरएनए को किस में चेंज कर लेता है, डीएनए को. और ये डीएनए हमारे डीएनए के साथ मिलकर हमारी स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स हमारी बॉडी की, विच आर नोन एज टीएच लिम्फोसाइट्स, इट मीन्स हेल्पर लिम्फोसाइट्स, विच आर अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी, स्टार्ट टू इन्फेक्ट दीज सेल्स. हमारी इन सेल्स को इन्फेक्ट करता है, विच आर मेकिंग आवर इम्यून सिस्टम. जो क्या बना रहे हैं, हमारा इम्यून सिस्टम बना रहे हैं. इफ दीज सेल्स आर इन्फेक्टेड, अगर ये सेल्स इन्फेक्टेड हो जाती है, इट मीन्स आवर इम्यूनिटी बिकम वीक.
हमारी जो इम्यूनिटी है, द पावर टू फाइट अगेंस्ट द डिसीज बिकम वीक, इट मीन्स द पर्सन विल सफर फ्रॉम बाउट्स ऑफ फीवर, बहुत डिफरेंट तरह के फीवर आएंगे, डिफरेंट तरह की उसे डिसीजेज लगती जाएंगी, लेकिन वो उसकी इम्यूनिटी उस डिसीज से उसको बचा नहीं पाएगी। इट मीन्स इट इज नॉट क्रिएटिंग इट्स स्पेसिफिक सिम्टम, अपना कोई सिम्टम क्रिएट नहीं कर रहा है, इसने हमारी इम्यूनिटी को वीक कर दिया, जिससे हमारे में डिफरेंट डिसीजेस लगती जाएंगी और हमारे अंदर डिफरेंट तरह के सिम्टम्स क्रिएट हो जाएंगे। इट मीन्स बेसिकली इट इज डिक्रीजिंग द पावर ऑफ आवर immune system by which our power to fight against the disease also decreases। अब मैंने बताया था जो प्रिवेंशन, जो आपके ट्रांसमिशन के तरीके हैं वही प्रिवेंशन के तरीके हैं। प्रिवेंशन के तरीके क्या हैं? फर्स्टली वी हैव टू नो अबाउट हाउ इट इज ट्रांसमिटेड, जो मैंने आपको बताया कि ये इस तरीके से ट्रांसमिट होता है, तो वो हमें उन सारी चीज़ों से बचना है। इट मीन्स फर्स्टली वी हैव टू यूज द डिस्पोजेबल निडल्स एंड सिरिंजेस। जब भी हम जाएं इंजेक्शंस के लिए तो हमेशा डिस्पोजेबल निडल सिरिंजेस का यूज़ करें, अदरवाइज उसको स्टेरिलाइज यूज़ करके करें, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, अननोन पार्टनर या फिर मल्टीपल पार्टनर से सेक्सुअल कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, सेक्सुअल कांटेक्ट अवॉइड होना चाहिए, ठीक। सेकेंड थिंग, whenever you are taking the blood, जब भी blood transfusion हो रहा है, it means whenever you require the blood in your body, so firstly you will check that blood is free from HIV virus, then you will take that blood in your body. Another, whenever you go to the barber shop, then firstly that razor should be sterilized or another razor should be used for the shaving purposes. And if you are in the habit of taking drugs by the injection, then you should avoid this. It means basically these are the things which can prevent by the infection of HIV virus. Now I am going to discuss the next disease which is caused by the virus, that is hepatitis. Now the next disease is hepatitis, that is also known as jaundice, because basically it affect our liver, हमारे liver को affect करती है, जिससे हमारा digestion भी affect होता है। That's why as you know that our liver juices are there, जो हमारे bile juice होता है उसका कलर क्या होता है? येलो होता है। It means when the concentration of bile juice is too much increased in our body, then the nails, our skin become pale and yellow in color. That's why it is also known as jaundice. Basically it is caused by the HBV virus, hepatitis virus, ठीक है। बट दिस डिसीज इज डिवाइडेड इनटू मैनी पार्ट्स, बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई, जी, बहुत सारे होते हैं, बट टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस बी। There is a difference between them because they are caused by the virus, and these viruses have different genetic material in them. It has the RNA as its genetic material. इस वायरस में RNA genetic material होता है. It means it is caused by the RNA virus. But this virus has the double-stranded DNA as its genetic material. It means it is caused by the DNA viruses. ये DNA virus से ट्रांसफर हो रहा है. So basically the mode of transmission, जो उनके ट्रांसमिशन का तरीका है, जैसे फैलते हैं, it is transmitted by the अनहाइजीनिक, इट मीन्स कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर. अनहाइजीनिक फूड और वाटर के थ्रू ही हमारी बॉडी से मतलब में ट्रांसफर होता है. सो फर्स्टली आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द हेपेटाइटिस ए. This is caused by, as I have already told you, this is caused by the RNA viruses, and it is a very acute, बहुत short time का infection है, which basically affect our liver. हमारे liver को affect करता है और mainly adults में, young adults में और children में affect करता है. ठीक है. अब इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो सेम है जो मैंने बताया, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करेंगे बाद में, लेकिन बेसिकली फॉर दिस वायरस द मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज अनहाइजीनिक, इट मीन्स कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर. एंड द सिम्टम्स आर कॉमन, बहुत कॉमन से सिम्टम्स होते हैं, जैसे फीवर, हाई फीवर रहता है, फैटिक, थकान रहती है हमारी बॉडी में, वीकनेस आ जाती है, स्पेसिफिकली जॉइंट पेन, जो हमारी जॉइंट्स हैं वहाँ पेन क्रिएट होता है. एंड बेसिकली the condition of anorexia, it means loss of appetite, भूख नहीं लगती है, वॉमिटिंग लगती है, नोजिया लगता है. ठीक है. बॉडी और हमारे जो यूरिन है, स्पेसिफिकली यूरिन, इट बिकम्स डार्क येलो इन कलर. यूरिन जो है वो हमारा डार्क येलो कलर का हो जाता है, तभी हमने क्या पढ़ दिया, जॉन्डिस बोला. ठीक है. एंड बेसिकली रैशेस क्रिएट हो जाते हैं, इरिटेटिंग रैशेस हमारी बॉडी पर. सो दीज आर द कॉमन सिम्टम्स. अब प्रिवेंशन का तरीका क्या है? प्रिवेंशन सबसे पहला तो वही है कि भाई वेन एवर वी आर यूजिंग द फूड एंड वाटर, इट शुड बी क्लीन होना चाहिए. इफ यू आर यूजिंग वाटर देन इट शुड बी क्लोरिनाइज्ड, इट शुड बी बॉइल्ड. और वेन एवर you come in contact with the patient which are suffering from hepatitis, then you should be clean, you should have the clean hands.
And basically for the prevention hepatitis A vaccine is also prepared. hepatitis A की वैक्सीन प्रिपेयर है तो उसको दे दिया जाता है जिससे हमारी बॉडी में जो है इसके लिए इम्यूनिटी क्रिएट हो जाती है. और वन थिंग जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, वेन एवर आवर बॉडी इज इन्फेक्टेड, वेन एवर आवर सेल इज इन्फेक्टेड बाई एनी वायरस, ऑटोमेटिकली आवर बॉडी, आवर सेल दैट इज इन्फेक्टेड स्टार्ट टू प्रिपेयर अ प्रोटीन दैट इज नोन एज इंटरफेरॉन विच प्रिवेंट द इन्फेक्शन ऑफ एडजेसेंट सेल. जैसे ये सेल है जो किसी वायरस से इन्फेक्ट हुई, उसके आसपास भी बहुत सारी सेल्स हैं, तो जो सेल इन्फेक्टेड है इट ऑटोमेटिकली फॉर्म अ स्पेसिफाइड प्रोटीन दैट इज नोन एज इंटरफेरॉन बनाएगा, जिससे ये अपने ऊपर एक ऐसी कवरिंग बना लेगा जिससे ये वायरस आसपास की सेल को इन्फेक्ट ना कर पाए. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द हेपेटाइटिस बी विच इज कॉज्ड बाय द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस, HBV वायरस. बेसिकली इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है. इट इज ऑल्सो नोन एज सीरम हेपेटाइटिस बिकॉज लिक्विड से ट्रांसफर होता है, और ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस. एंड इट वॉज कंसिडर्ड दैट इट इज मोस्ट डेंजरस, इट इज मोर डेंजरस देन HIV से भी ज्यादा डेंजरस है. और ये एक ब्लड बॉर्न डिसीज है. इट मीन्स बेसिकली दिस वायरस इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द बॉडी फ्लूइड. इट मीन्स इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड इन द कैटेगरी ऑफ सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस. ये भी उस कैटेगरी में आता है. एंड बेसिकली इट कैन कॉज लिवर कैंसर इन आवर बॉडी. हमारी बॉडी में क्या कर सकता है? लिवर कैंसर कर सकता है. इट मीन्स जो मेन ऑर्गन है जो अफेक्ट हो रहा है वो है हमारा लिवर. यहाँ पर इन्फ्लेमेशन क्रिएट होता है. ठीक है, इसकी जो पावर है बाइल जूस बनाने की वो भी डिक्रीज हो जाती है. अब इसके लिए बचने का तरीका वो ही है, प्रिवेंट सेक्सुअल कॉन्टेक्ट विद द अननोन पार्टनर, मल्टीपल पार्टनर्स. ये करना है. इट मीन्स व्हेन इफ यू आर हैविंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंजेक्टेबल ड्रग अब्यूजर देन यू शुड अवॉइड दैट. इट मीन्स व्हेन you will come in direct or indirect contact of blood, semen and any other body fluid of patient suffering from the hepatitis B, then you will also infect by this disease. And same here, हेपेटाइटिस बी का भी वैक्सीन है. वैक्सीन को इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है बॉडी में जिससे हमारी बॉडी में इम्यूनिटी क्रिएट हो जाती है इससे वायरस से लड़ने के लिए. ओके, नाउ वी हैव डिस्कस 2 more डिसीज विच इज ऑफ वायरल डिसीजेस, जो वायरस डिसीज की कैटेगरी में आती है. नेक्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू रेबीज एंड अनदर डिसीज दैट इज पोलियो. ओके, टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस